وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ الگ بات یہ مان رہے، ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ جو تقریر کر رہے ہو وہ تقریر پہلے لکھ لیا کرو جی جی، اور وہاں جو مولوی ہیں ان کو دکھا دیا کرو، جب وہ اس میں سے کوئی کاٹ پیٹ کر دے تو کاٹ دو اور جو باقی رکھتے ہو اس کو کہو، اس کو بیان کرو۔ صحیح بات۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ پیغمبروں کے شان میں گستاخی کر دیں، پیغمبر کے ساتھیوں کے شان میں گستاخی کریں، صحابہ کے مولانا سعد صاحب تو سعد صاحب کو میں بتاؤں سعد صاحب کو نصیحت کی گئی کہ آپ صحیح تقریر کرو جی، بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جی۔ اچھا، سعد صاحب کے اس طرح کی گفتگو سے شورا والے پہلے ہی سے سے ہوئے تھے۔ اچھا، الٹی سیدھی یہ بیان کریں، کسی کی بات نہیں مانتے۔ پھر اندر بہت سی خرابیاں ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے شورا کے جو بہت لوگ جو شروع سے اب تک کام کرتے چلے آئے، ساتھ ساتھ تو بیچ میں آئے، ساتھ ساتھ تو بیچ میں آئے جی، وہ تو جوان ہیں، تو مولانا الیاس کے پوتے کی وجہ ہے بس۔ جی جی۔ اچھا ایک بات اور بتائیے حضرت، ایک منٹ جی، دارالدیوبند نے جو یہ فتویٰ جاری کرا ہے کچھ لوگ تو کہتے جعلی ہے، یہ نہیں، جو آپ کے پاس وہ صحیح ہے، صحیح ہے نا یہ؟ اور اگر کوئی غلط کوئی حصہ لا کر دکھائے نہیں، جو ہمارے پاس یہ جو فتویٰ ہے یہ صحیح ہے نا حضرت؟ ہاں بالکل۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ جی جی، کیا ہے فتویٰ؟ وہ جو مولانا سعد نے جو بیان کیے ہیں، بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں بیان کرتے ہیں جی جی، ان سے یہ کہا گیا کہ تم صحیح بیان کرو، بس اتنا ہی۔ اچھا حضرت جیسے ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے کہ انہوں نے رجوع کر لیا کا کیا مطلب ہے معلوم ہے نا جی؟ کہ جی میں آئندہ سے ایسی باتیں نہیں کروں گا جی، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، تو اس پہ دارالدیوبند کا بھی اتفاق نہیں ہے؟ نہیں، مطلب ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آخری میں جو وضاحت ہے جی، دارالعلوم جہاں تھا وہیں اب بھی ہے جی۔ اچھا، اس کا مطلب رجوع نہیں ہوا؟ نہیں، رجوع کا سمجھ نہیں آپ؟ نہیں سمجھ۔ رجوع کا مطلب کیا ہوا کہ میں آئندہ سے ایسی تقریر نہیں کروں گا جی جی، لیکن میں پھر بھی کر رہے، اس سے بھی آگے کی کر رہے۔ اچھا جی جی، تو ہم کیا ان کو کلین چیٹ دیں گے؟ اچھا، آپ نے توبہ کر لی جی، کل کیا کرو گے کیا پتا؟ جی جی، اور ہم سے تو سرٹیفکیٹ لے لو گے کہ ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ہیں، اگلے دن اپنا وہی پرانا کام شروع کریں گے۔ اس لیے آپ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے، بس یہ ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، نہ دینے والے۔ اچھا جی، دینے والے بھی نہیں؟ نہیں دیں گے ہم نے تو ان کو ایک نصیحت کی کہ بھئی آپ جو برابر کے گھر کی زنانی کو دیکھتے ہو مت دیکھا کرو۔ جی جی، ان نے ایک زنانی کو چھوڑ کر 2-3 زنانی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جی جی، کلین شیٹ کیسے دے دیں؟ تو ہمارے حضرت جی کا کیا ہوگا پھر؟ وہ حضرت جی مفتی ریاست صاحب ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا نہیں، جیسے وہ شکایت لے کے آتے تھے راجنیتی ہے، بتیرے آتے رہتے ہیں۔ اچھا، سب کی بات سن کر کوئی کام کیا جا کیا؟ ہاں بتاؤ کہ کون کہاں تحقیق کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو وہ جو انہوں نے لکھ کے آئے تھے وہ رکھ لیا آپ نے یہاں؟ نہیں، دے دیا میں نے کہ بھائی تم موتی حساب سے بھی دو۔ ٹھیک ہے جی، بتا دیا۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ہی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا لوگوں سے تم ساتھ کے پاس مت جاؤ، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت آپ کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ عبدالخالق مدراسی۔ اچھا، عبدالخالق صاحب، اور حضرت جی کا؟ سنبل مراد آباد کا رہنے والا۔ اچھا، آپ مدراس کے؟ ویسے ہم تو بس جمے ہوئے، کوئی بات نہیں، کمزور تو کمزور ہے۔ حق پر قائم دائم رکھے اللہ۔ مجھے بتائیے اللہ کی مدد ہمیشہ کن کے اوپر آئی ہے؟ جو حق پہ ہے، نہیں حق پہ ہیں اور کمزور ہیں۔ جی 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 جی، کمزوروں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے۔ جاہلوں کی ٹولی ہی بہت سے نبی بنا دی۔ جی جی جی، مرزا غلام احمد قادیانی بھی اور فلاں بھی، شکیل بھی، فلاں بھی۔ اور یہ تو یہ کہہ رہے کہ اب پتہ لگایا بلند شہر میں کتنا بڑا ہمارا مجمع۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھا گا تو مطلب 2-3 ناچنے والی کو آپ کے یہاں بھی بنا لو، مجمع اس سے زیادہ مل جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ وہ ہو گیا اجتماع۔ نہیں، بلند شہر کا تو بھی آج اعظم گڑھ چل رہا ہے، کل دعا ہے۔ گاؤں سے 300 سے ایک بس بھیج دیجیے ہم نے 60,000 میں کر کے، کہہ رہے ہیں بہت بھیڑ ہے وہاں سے۔
भाई गए हैं, 3 भाई गए मेरे। मौलाना साथ साथ का हो रहा है ना आजमगढ़ में। नहीं सूरा वालों का अच्छा अशूरा वालों का हो रहा है भीड़ वहाँ। है जी वहाँ से, हाँ बहुत भीड़। बहुत भीड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो ठीक है। मेरे कहने का आप समझ रहे हैं नहीं, आप वो किसी जनानी को दूसरे की तो एक रहे हो, तो हम एक मौलवी होने के नाते हम आपसे क्या कहेंगे? हाँ जी, भाई ये बहुत बुरी बात है। अपनी जनानी के होते हुए जी। दूसरी की जनानी को देखना तो भाई गलत बात है। ऐसा ना करो। आपने कहा कि जी मैं तो नहीं देखूंगा, तो हम क्लीन शीट थोड़े ही दे देंगे। अगले दिन आपने 2-3 जनानी को देखते फिरोगे। जी 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 सही। क्लीन शीट देने का कोई मसला नहीं है। जी उनको नसीहत की गई कि आप ठीक से तकरीर करो, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब उस सुकून से बैठे जी, वो बताया ना कि आप लोगों ने कहा फतवा सही है, फिर चुप हो गए सारे के सारे। नहीं तो उन्होंने कह रहे थे नीचे जाओ जाओ, उन्होंने कह रहे किन्ने फतवा जारी करा दिखाओ हमें, कौन है हमें डांट दे रहे नीचे जाके। अच्छा हाँ आपने कुछ कहा होगा कि नहीं नहीं सुन रहे होगे, हम यहाँ नहीं, इनने ये कहा कि भाई हम कुछ लोग और आए हैं जी। वो उनसे कह दीजिए कि भाई वो सब चीज़ें सही नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा जब आप दिखा रहे हो जो चीज़ हमारे यहाँ से चली हुई चीज़ को हम गलत कैसे कह देंगे? अच्छा जी, झूठ हर जगह झूठ। मतलब यूँ कह दिया कि उन्होंने कह दिया ये सही नहीं है, तो हमें भी नहीं कह रहे कि जाओ, उन्हें कह रहे कि हजरत उन्हें कह रहे हैं, पर कुछ नहीं यहाँ से फतवा तो बोला था। हमारे साथ हम डर रहे थे, अल्लाह के डर रहे थे हजरत हम आपका सुबह से खुदा हमारे का सामने इस 4 दीवार में अंदर घुसना बहुत डर रहे थे कि चेहरे मिलेंगे वहाँ और हमारे जैसे नापाक आदमी कैसे जाएंगे वहाँ। नापाक हमें तो ये कहा जाके कि ये कुछ नहीं है जो तुम पढ़ के दिखा लो जाओ। हमारे साथ हो जाए, अल्लाह की मदद, ये हर जगह हो। 2 रकात नमाज पढ़ी थी आगे ही, जी। अल्लाह से मांगा था। असद मदनी सभी हमने जाते मौलाना अरशद मदनी साहब मिले हमें मस्जिद में, ये कोई नहीं गए, अरे कुछ पूछना है ना 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 बस मुसा में, हमने कहा हजरत नहीं काम करिए, हाँ, हमें कोई मतलब नहीं, काम करिए, सही है। काम करो आप। ये डर रहे थे। आपने बताया ना हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने कहा कि हक जो है ना वो मदद से हजरत अल्लाह का शुक्र है भाई। मेवात से बोल रहा हूँ हजरत। अच्छा है आपकी तबीयत ठीक है जी? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा, मशगूल तो नहीं है हजरत? नहीं है, फरमाइए। जी हजरत, कुछ मेवात के बारे में आपको कारगुजारी सुनानी थी हजरत। क्या हुआ? जी जी हजरत, हमारे यहाँ जो जमात के साथी हैं ना जी, जी। ये जमाती फितना बहुत जोर मार रहा है हजरत। इमामों को ये कहकर हटा रहे हैं कि जिसकी साल नहीं लगी वो इमामत के लायक नहीं है हजरत, उसको इमामत से हटा रहे हैं जी। और जो मौली सादकी जी गलत बयानी को मुक्तदियों के लिए बता रहा है, आवाम के लिए बता रहा है जी, उसको इमामत से हटा देंगे जी। तो हम कहते हैं हमने कुरान हदीस के पीछे नीयत बांध रखी है जी, तो वो लोग जवाब में कहते हैं हमने मौली साद के पीछे नीयत बांध रखी है, वो चाहे कुछ भी करे हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते जी। अच्छा जी, दारुल के फतावा, उलमाए कश्मीर के फतावा, उलमाए बांग्लादेश के फतावा, जितने भी फतावा हैं हम उनको बताते हैं लोगों के लिए जी, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं हम एक भी फतावा को नहीं मानते जी, फतावा को मामूल बना हुआ है आने का। मीन कि अगर तुम दारुल के फतावा को नहीं मानते तो तुम तो मसलकन देवबंदी भी नहीं रहे। भाई जो देवबंद की ना माने वो देवबंदी किस बात का? तो वो कहते हैं कि हमें हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है इनकी। तो मैंने उनसे कहा जी हमारे यहाँ के एक मुफ्ती हैं जी, वो मुफ्ती कहलाते हैं अपना आपे को जी, कि फिर आप देवबंद की तरफ रुख भी ना करें अपना। जब देवबंद के फतावा की कोई अहमियत नहीं है आपके नज़दीक, तो आप रुख करके क्या करेंगे देवबंद की तरफ? जी। हजरत बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं इसकी बातों को जैसे मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हो जी इनकी बातें। और जी साद की गलत बयानी हजरत, आप तो मशगूल रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने में आपको वक्त नहीं मिलता जी। रोज़ बरोज़ इसकी गलत बयानियों में इजाफा भी हो रहा है जी, और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक गलत बयानी आ रही हैं जी। हम सुनते हैं इनकी बातों को, ये जलसों में कहते रहते हैं या मरकज़ में बैठ के कहते रहते हैं, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक बातें अब कह रहे हैं जी। दारुल देवबंद ने 2016 में फ़तवा लगाया था जो जी, फिर वजाहतनामा बार बार भी दे दिया था। 2023 में भी एक फ़तवा लगाया था 27 सफ़हात का दारुल ने, जिसमें इसने कहा था कि जो उजरत लेकर पढ़ाते हैं उनका मुजाहदा नाक़िस है जी। तो दारुल देवबंद ने इस पे भी मुफस्सल एक फ़तवा दिया था जी। लेकिन फिर भी
उसी बात को कहते हैं कि जो तनख्वाह लेकर पढ़ाते हैं उनसे 500 साल पहले रंडिया जन्नत में जाएंगी जी। उन जो तनख्वाह लेकर पढ़ाते हैं उनसे 500 साल पहले रंडिया जन्नत में जाएंगे हजरत, ये अच्छा साद का अच्छा बयान है जी। फिर तो जी जितने शेखुल मुफस्सिर शेखुल हदीस जो मदारिस में तसनीफ कर रहे हैं, बुखारी का दर्स दे रहे हैं, कुरान करीम की तफसीर पढ़ा रहे हैं जी, उनका सबका मुजाहदा नाकिस है जी। जी 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 और एक बात ये भी कही थी हजरत कि जो गश्त के बगैर ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जी, गश्त के बगैर ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकते, ये बयान भी जी इनका जी। और एक बयान है अंबिया सहाबा मलाइका इन तीनों किस्मों से बढ़कर ईमान हमें दिया गया था जी, साद का बयान है जी ये। जी हजरत अच्छा मेरे पास तो इसके नाम के पीछे मौलाना लगाया नहीं जाता हजरत, क्योंकि जब हम अपने बड़ों से मौलाना का माना सुनते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है जी। और जो आदमी शरीयत के खिलाफ बोले जी, मेरा दिल नहीं करता कि उसके नाम का पीछे मौलाना लगाऊं जी। ठीक जी साद की गलत बयानी कोई ढकी छुपी नहीं है हजरत। उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद, इसको हम अपना सुप्रीम कोर्ट मानते हैं इस्लाम का जी। हम ये समझते हैं कि दारुल बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रहा है दीन की जी, जी लेकिन जी दारुल पे कोई हमारा ईमान थोड़ी है जी। ईमान तो ईमानियात जो 7 चीजें हैं वही हैं जी, लेकिन दारुल देवबंद शरीयत की एक नंबर तर्जुमानी कर रहा है जी, लेकिन ये लोग दारुल का भी दामन छोड़ रहे हैं जी। दारुल ने हर मौके पे जी उम्मत मुस्लिमा के ईमान और इस्लाम की हिफाजत की है जी। अब हजरत इनका जो ये फिरका बन रहा है ना जी, जमाती फिरका जी, दारुल कोई हैसियत नहीं रखता इसके सामने जी। इनकी बातों से ऐसा लगता है हजरत दारुल की भी नहीं मानते जी ये। हाँ हाँ एक मौके पे जी मौला शाह मदनी ने कहा था जी, अमीनिया आए थे दिल्ली जी, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जहाँ पढ़ाते थे जी अमीनिया में। जी जी तो एक मौके पे मौला शाह मदनी साहब ने वहाँ बुखारी का दर्स दिया था हजरत। अच्छा तो उसने ये कहा था मौलाना अरशद मदनी साहब ने कि जो उलमाए देवबंद के मसलक को आंख बंद कर कर अपने सीने से लगाता है, मैं उसको इल्म हदीस की इजाज़त देता हूँ जी। हजरत उलमाए देवबंद का मसलक तो दूर की बात, इन्होंने तो कुरान हदीस को ही छोड़ दिया जी। उलमाए देवबंद का मसलक तो हजरत कुरान हदीस के बाद में ही तो आएगा जी, पहले तो हमारे लिए कुरान हदीस है जी। लेकिन देवबंद को तो क्या छोड़ा इन्होंने, तो सहाबा की सीरत को ही छोड़ दिया जी। एक मौके पे इन्होंने एक खत लिखा था साद के हामी ने जी, कोई साद का हिमायती था, उसने खत में लिखा था, मौलाना अरशद मदनी के बारे में भी लिखा था जी कि पंडित अरशद अयोध्यावी जी, और मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब जो दारुल के मोहतमिम साहब है जी, उनके बारे में भी लिखा था कि मुर्तद, और ये लिखा मुर्तद लिखा था हजरत के बारे में जी। ऐसी बातें लिखते रहते हैं जी। देवबंद को तो बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने, तो अपना एक अलग ही फिरका डिक्लेयर कर लिया जी। बस ये तायन करना बाकी है, अभी ऐलान होना बाकी है, वरना हाँ तो ये जी किसी की नहीं सुन रहे जी। जी उलमा इकराम को जी अब थोड़ी सी इसकी न सख्त खबर लेनी चाहिए हजरत। अगर ऐसे ढील बढ़ती रही तो जी बहुत आगे पहुंच जाएगा ये जी। ठीक और जो इनके हामी है जी, जो इनके जमाती इनके साथ जुड़े रहते हैं जी, वो भी इस जैसी बातों को करते हैं जी। जी जो जी ऊपर से बातें मिलती हैं इनको, वही बातें ये बयान करते हैं जी। और सही जो सही जो जो आलिम इनके बारे में जो इनकी गलत बयानी उसको अवाम के सामने रखता है जी, उसको नाम देते हैं कि तबलीग के मुखालिफ जी ये। पक्के तबलीग के मुखालिफ तो ये हैं जी, जो कुरान हदीस में तबलीग बयान की है जी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला, उसके खिलाफ कौन हो सकता है जी। ये तो मैं ऐलान करता हूँ कि अगर कोई कुरान हदीस की तबलीग के खिलाफ है तो वो तो काफिर हो जाएगा जी। ये जो मुरव्वजा तबलीगी जमात है जी, इसके बारे में बोल रहे हैं, जो इन्होंने बिदात और खुराफात का सिलसिला शुरू किया है जी, ये बहुत उरूज पे है हजरत अब फिलहाल जी। अच्छा जी हमारे यहाँ के जी दारुल इफ्ता हैं, जो बड़े बड़े मदारिस हैं मेवात के जी, वो इन्हीं की हिमायत में सारे जी, कोई बोलता ही नहीं है जी। रोजी रोटी का मसला है जी, हमारे मेवात में जो साद के खिलाफ बोलता है उसको इमामत से हटा देते हैं जी।
हम्म जो मदारिस वाला बोलता है उनके खिलाफ हो जाते हैं जी। हम्म और ये तबलीग के पक्के दुश्मन ये खुद हैं जी। हम्म तबलीग के तो पक्के दुश्मन ये खुद हैं जी, तबलीग का हुलिया बिगाड़ रहे हैं जी ये, हम्म जो इन्होंने तहरीफ का सिलसिला शुरू कर रखा है जी। हाँ 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 एक बयान में इनके मुरीद ने कहा था जी, मौलाना मुस्तकीम साहब हैं, कोई जो मरकज के बड़े आलिम शुमार किए जाते हैं जी, वो हम्म उन्होंने कहा था कि अगर हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र में से खड़े होकर आ जाएं तो वो भी मौलवी साहब के साथ जुड़ के काम करेंगे जी, नौज बिल्ला जी। अच्छा अवलन तो इसका इम्कान नहीं है कोई सहाबी अपनी कब्र में से वापस आए जी, और हम्म अगर मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए अगर आ भी जाए तो जी इसकी इत्तिबा करेंगे, वो तो सहाबा की इत्तिबा में लग जाएंगे सारे लोग जी। अगर सहाबी इसकी इत्तिबा करेंगे एक उम्मती की जी। सही है किसी मौके पे ना जी जी मौलाना अरशद मदनी भी जी ऐसी लूज बात कर जाते हैं जो इनको फायदा होता है जी, हम्म ऐसी लूज बात करते हैं बहुत ज्यादा जी। हम्म अब जी मैंने एक मरतबा फोन भी किया था हजरत को जी, हम्म मैंने की जी हजरत अगर आप दारुल के फतवा आपने उस फतवे पे साइन किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि मौलवी साहब की बाज़ बातों से अम्बिया की शान अक़दस में बेद भी ज़ाहिर होती है, इनकी बातों में तफसीर भी राय पाई जाती है, ये अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से हटते जा रहे हैं जो बिलाशुबह गुमराही का रास्ता है। अगर इन पर फौरी कदगन ना लगाई गई तो ये गुमराह फिरका बन जाएगा जी। जब हजरत आपने उस फतवे पे साइन भी किए हैं तो आप किस मुंह से इनकी हिमायत करते हैं जी? आप तो खुद ही दारुल के वकार को मजरू कर रहे हैं जी, जी सही लेकिन है मौलाना अरशद मदनी बात नहीं करते जी। हम्म हालांकि हमें कोई ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन हम इसी की तरफ थोड़ा तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। मैंने कि जी दारुल ने जो कहा है आप उस पे मजबूती से डट जाइए जी, और वो तो आपका भी कहा है जी, आपने खुद ने साइन किए हैं उस फतवे पे जी। सही है सही है तो मौला हिदायत की दुआ कीजिए जी हम तो जी ये कहते हैं मौला अरशद मदनी से जी, अगर आप हिमायत भी नहीं कर सकते उस फतवे की जी तो इनकी तायद तो मत करिए जी, इनको फायदा पहुंचता है। जब किसी सादियानी से बात करते हैं जी साद के हामी से जी, तो वो हवाला भी देते हैं मौला अरशद मदनी के हमारी तरफ है वो तो हमारी हिमायत करते हैं जी, फिर इतना नुकसान होता है जी बहुत ज्यादा जी। अब क्या करें जी? दारुल बार बार मौका बमौका वजाहत भी जारी करता रहता है जी। और एक बार ऐसी बात भी आई थी बांग्लादेश में जाके मौला अरशद मदनी ने ये कह दिया था जी कि दारुल कोई फतवा वतवा नहीं है जी, रुजू हो गया उससे। रुजू किससे हुआ जी? जी हजरत मेरे पास मौली साहब के बहुत सारे बयान हैं जी, इनके बयान पहले से ज्यादा खतरनाक है जी, पहले से ज्यादा खतरनाक है जी। अब कोई बयान है जो जी उनमें अच्छा तहरीफ बहुत ज्यादा पाई जाती है जी कुरान करीम में जी, और अहादीस में अपने पास से घड़ लेते हैं जी। जो अपना एक तरीका है इनका, जो इन्होंने एक तरीका बना रखा है, उस तरीके को साबित करने के लिए कुरान हदीस में तोड़ मरोड़ कर बातें पेश कर देते हैं जी, उस तरीके को साबित करने के लिए जी। जी, और ये कहते हैं कि ये तरीका तो मनसूस है जी। फिर जी ये मनसूस भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मौलवी इलियास ने शुरू किया है जी। इनकी खुदों की बातों में तज़ाद है जी। जब मनसूस है तो फिर ये कहो कि नबी से साबित है हमारा काम, ये क्यों कह रहे हो कि मौलवी इलियास ने शुरू किया है? तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हज़रत हमारे यहाँ मेवात में ख़ास तौर से इस जमात के फितने से जी। हज़रत आप दुआ भी कर दीजिए जी, अल्लाह फजल और फरमाए अल्लाह थोड़ी सी फजल कोशिश भी करते रहिए जी। इंशाअल्लाह दुआ भी आप याद रखें आप जी जी हज़रत मौला अरशद मदनी से बात नहीं होती इस ताल्लुक से जी? नहीं मेरी तो बात नहीं होती नहीं होती जी। नहीं होती हज़रत आपको करेंगे भी जी जी करेंगे जी 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 बहुत दुआ है हमारे आपके साथ जी हज़रत, ठीक है थोड़ा सा उनको तवज्जो दिला दीजिए जी। ठीक है जी हज़रत आप भी दुआ करिए जी। अल्लाह फजल फरमाए अल्लाह फजल आमीन फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। ठीक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम